My screen presenting or not? Uh, Hello. yes, so, Present हो रही है ना? yes. Okay. Now let's start with units. Units are used to represent the dimension in AutoCAD. We can change unit accordingly. So for access the unit, here is the application menu. In the top left corner, the symbol of the AutoCAD A. Click on this A. Click on this A and go to the drawing utilities. Second last option, drawing utilities. Click on this. Then you find here units. Then when you click on this units, then the dialog box of units will appear on your screen. Okay. And the second way is just type UN in your command box and press enter, and the dialog box of units will appear on your screen. In the length section, the type of the length should be decimal, precision 0.0000. In the angle section, type should be decimal degree and precision should be 0. Here is the checkbox of clockwise. Clockwise means if you check this box, means clockwise, yeah, means your positive angle direction is in the clockwise. And if you uncheck this box, then your positive angle direction is in the anti-clockwise. So we use default setting of the AutoCAD and we don't check this box. Insertion scale. Insertion scale consists of the units to insert in the content. We can select the units from the drop-down list according to our requirement. In your first year, AutoCAD only millimeter is used as insertion scale, so set it as millimeter, and the lighting set as international. And for saving these changes, press OK. So we all set with units. Let's start with our first command, that is line. So अभी तक विवेक और नंदिनी ने लाइन बना के दिखाया तुम्हें, तो मैं इसमें थोड़ा और मतलब अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बताऊंगी. वी हैव 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम. So firstly, I will try to explain you that how you will switch relative coordinate system from absolute coordinate system or absolute coordinate system from relative coordinate system. So here in the bottom right corner, there is 3 lines customization. Click on it, and on the 6th number, check the dynamic input box. When you check this box, स्क्रीन पे दिख रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ? Hello. Okay. Okay. When you check this dynamic box, here is the option of dynamic input is this. Right click of the mouse at dynamic input, go to the dynamic input settings. Here enable pointer input. Go to the settings, left click of your mouse, settings. And here is the relative coordinates and absolute coordinates. As you can see, AutoCAD default setting is at relative coordinates. So for a while we set it at absolute coordinates. Press OK for save changes, then again press OK. Okay. Then for take line command, you can take line from your home, here left top corner, or you can also write L and press LINE, line, and press enter in the command box. Okay. So it asks us specify first point of the line. So specify first point. Let's suppose I choose this point and the next point is this. Okay. Simple line draw हो गई. Next. अब उसके बाद you all guys familiar with the Cartesian plane, and here is our x-axis and here is our y-axis. You can show here. You can see here. Okay. In absolute coordinate system, एंट्री ऑलवेज काउंट्स फ्रॉम द ओरिजिन. मीन्स अगर कोई भी पॉइंट तुम ऑटोकैड पे बनाओगे तो उसका जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा. और इन रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, AutoCAD does not count from origin. Instead, the reference point is the previous point in the drawing. Means if you put any point, then the reference point of that point is the previous point. I will explain you. See, we take line command. Then specify first corner. Let's suppose our coordinates is 10,
10. You can see here when I click comma, then the x coordinate automatically logged. Then 10 comma 10, press enter, and we get our first point here, 10 comma 10. Okay. And the second point, let's suppose we are in absolute coordinate system, remember. Yeah, means our reference point is origin always. So second point is, let's suppose 20 comma 10. 20 comma 10. So this is our line. These both points of our line is in the reference of the origin in absolute coordinate system. But when we make in relative coordinate system, let's do it again. Take your line command, then enter your coordinates 10 comma 10, enter. देन इन रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेटिव से एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट से रिलेटिव पे स्विच करने के लिए यू हैव टू गो इन डायनामिक इनपुट सेटिंग्स, बट वी हैव आल्सो अ शॉर्टकट. We have to make a line in relative coordinate system, and first point is our 10 comma 10. Then just type @ first, and then type our coordinates 20 comma 10 and press enter. Then our line is formed in relative coordinate system. This line means the second point of this line, you can see on your screen, the second point of this line is the reference in the first point of this line. Rather, the in a absolute coordinate system, the reference of both the points is the origin. Okay, hope so you all understand. If you guys have any doubt, then please ask. Anyone has any doubt in absolute and relative coordinate systems, then please ask. Can you please repeat again? ओके. रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब अगर तुम कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो उस लाइन में फर्स्ट पॉइंट तुम अपनी लोकेशन दे सकते हो, लेकिन जब तुम सेकेंड लाइन की लोकेशन दोगे तो उसका रेफरेंस जो दिया जाएगा वो फर्स्ट के रेफरेंस में दिया जाएगा. ओके, आई विल एक्सप्लेन. टेक योर लाइन कमांड, देन लेट्स सपोज हेयर आई वांट 10 comma 10 कोऑर्डिनेट हमने चूज करा, देन प्रेस एंटर, तो हमें ये पॉइंट मिल गया 10 comma 10. अभी मुझे एक लाइन बनानी है जिसकी डिस्टेंस मुझे चाहिए 10 सेंटीमीटर की. तो उसकी डिस्टेंस मुझे 10 सेंटीमीटर की इस पॉइंट से, मतलब कि जो मेरी लाइन होगी उसके दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए. मीन्स रिलेटिव, मतलब सेकेंड पॉइंट जो मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ वो फर्स्ट के रिलेटिव है, क्योंकि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है. तो जब मैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करूंगी तो एक शॉर्टकट की है, हम @ पहले प्रेस करेंगे, देन उसके बाद हम अपना नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, मतलब अभी कार्टेशियन प्लेन में तुम सबने पढ़ा होगा, जब हम 10 comma 10 पे हैं और हमें एक स्ट्रेट एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है 20 सेंटीमीटर की, सॉरी 10 सेंटीमीटर की, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 20 comma 10 होगा, राइट? ओ सॉरी, एक सेकेंड. 10 comma 10 एंटर, एंड 20 सेंटीमीटर का हमें यहाँ पे देना है एक लाइन, ठीक है. और हम अभी हैं एब्सोल्यूट में, तो हमें रिलेटिव के थ्रू करना है, तो जस्ट 20 comma 10 यार 20 comma 10 20 comma 10 जो है वो इस ये वाले पॉइंट के रेफरेंस में मतलब अब ये सपोज करो कि ये वाला पॉइंट तुम्हारा ओरिजिन है, और जब तुम इस पॉइंट को एज अ ओरिजिन देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है वो 20 comma 10 होगा, इसके रेफरेंस में नहीं होगा, जबकि ये वाला पॉइंट हमने इसके रेफरेंस में बनाया था. ओके, Yes, understood. okay. Anyone has any doubt? Okay, so next is our polar coordinate system. When we know the length of the line and the angle with the horizontal, यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन, जब हमें लाइन की लेंथ और पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ एंगल पता होता है किसी लाइन का, तब हम यूज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. यू ऑल गाइज फैमिलियर विद दिस, राइट? ये तो सबको पता होगा, है ना? तो इसमें क्या है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180, ये 270, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 100 और विड्थ है 50. अब हमें ये रेक्टेंगल लाइन से ड्रॉ करना है, तो वी टेक लाइन कमांड. अभी इसमें क्या है, ये जो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, हम कोई भी फर्स्ट पॉइंट चूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमने ये फर्स्ट पॉइंट अपना चूज कर लिया. उसके बाद हमें जाना है 100 सेंटीमीटर. तो ये जो हमारा बॉक्स यहाँ पे हमें टाइप के लिए शो हो रहा है, इसमें हम अपनी लेंथ लिखेंगे 100.
ये शॉर्टकट की है, इसे याद रखना है कि जब भी तुम्हें लेंथ और एंगल पता है, ये तुम्हें एग्जाम में हेल्प करेगा। जब भी तुम्हें लेंथ और एंगल पता है तो जस्ट टाइप लेंथ, देन प्रेस टैब in your keyboard left corner, left upper corner, there is a tab button, then press tab and press and type your angle, and there is angle 0, type 0, press enter. So there is a line which is 100 centimeter long and at 0 degree angle. Okay, then next line is in the direction of upward, we want to draw a rectangle. ओके अभी कुछ लोगों को डाउट होगा कि हम एंटी क्लॉकवाइज रेक्टेंगल क्यों बना रहे हैं, हम क्लॉकवाइज रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। बट यूनिट्स में तुमने देखा कि मैंने क्लॉकवाइज वाला बॉक्स क्लिक नहीं करा था, मतलब मेरा जो पॉजिटिव एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये वाली लाइन है, ये 50 सेंटीमीटर है, तो जस्ट टाइप 50 मिलीमीटर, सॉरी, तो जस्ट टाइप 50 टैब and type your angle. Angle is 90 degree. Press enter. Okay. The next line is again 100 millimeter long. 100 tab 180 angle. You can show left में मैंने angles बना रखे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं 180. Press enter. So next and the last line of this, we can easily close this box here, but we can use polar, I explain you polar coordinates, तो हम polar coordinates से बनाएंगे। ये लाइन 50 mm की है, तो 50 एंगल हमें देना है, देन टैब, टैब से क्या होगा, हमारी लेंथ लॉक हो जाएगी, हमें सिर्फ एंगल देना है, देन एंगल इज 270 डिग्री। ओके ओके, तो अभी ये डाउट आएगा कि ये मैंने 270 किया बट ये ऊपर क्यों चला गया। तो ये ऊपर इसलिए चला गया कि जब मैं अपना कर्सर, जब मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करती हूँ ना, और मैं अपना कर्सर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और मेरा कर्सर इस डायरेक्शन में है और मैं 270 दे रही हूँ, तो वो अपोजिट जाएगा, क्योंकि ये मैं जिस मतलब ऑटोकैड में इतना मतलब वो समझता है कि जिस डायरेक्शन में अपना कर्सर एक्सटेंड कर रहे हैं, हमें उसी डायरेक्शन में लाइन चाहिए। और जब मैं नीचे एक्सटेंड कर रही हूँ, मतलब मुझे 90 डिग्री पे लाइन चाहिए, बट मैंने लिखा 270, इसका मतलब कि उसने उस चीज को समझा कि मैं गलत एक्सटेंड कर रही हूँ, वो ऊपर 270 ले गया। ठीक है, समझ रहे हो ना? बाकी चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना, सबको समझ में आ रहा है ना? सो जस्ट टेक 50 टैब 90 कैप्स। ओके, सो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया बाय यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, व्हेन यू सॉल्विंग योर लाइन and plane questions, this will help you. Okay, next is our pick point method. Pick point method is very easy. Pick point method, you just have to take a line command, pick the location of your first point and click here, then similarly pick the location of your second point and click here. Just simple as this. As you can see, this is simple. Okay, so we can okay, so अभी हमने देखा कि absolute coordinate system, relative coordinate system, polar coordinate system and pick point method, चारों से हमें लाइन बनाना आ गया कि हम लाइन कैसे बना रहे हैं। ओके, इफ यू guys have any doubt then you can ask or you can type in chat box. Okay, next is our multi-line. So what is multi-line? Multi-line are the objects having maximum of 16 parallel lines and minimum of 2 parallel lines. मतलब मैं क्या कह रही हूँ, एक बार समझने की कोशिश करो कि हाँ बोलो। बस वो पोलर कोऑर्डिनेट वाला आपने ऑप्शन कैसे लेके आया था? पोलर कोऑर्डिनेट वाला, पोलर एक्चुअली पोलर कोऑर्डिनेट, एक सेकेंड, एक्चुअली पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो है वहाँ मतलब ये है कि हमें हमारा सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट्स पे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट पे होती है। यहाँ पे बस इतना है कि पोलर मतलब कि जहाँ पे तुम्हें एंगल पता है, मतलब लाइन हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, अगर तुम्हें वो एंगल पता है तो तुम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज कर सकते हो। और उसके लिए जो शॉर्टकट कीज यूज होती हैं वो है कि तुम अपनी, मैं बना के दिखा देती हूँ एक बार और, तुम अपनी लाइन यहाँ पे करोगे, बनाओगे, देन उसकी लेंथ इनपुट करोगे पहले, देन टैब करोगे तो उसकी लेंथ लॉक हो जाएगी, एंड देन एंटर करो उसका एंगल। तो लेट्स सपोज मुझे 90 डिग्री पे बनाना है, वर्टिकल बनाना है, तो मैं 90 एंटर करके यहाँ पे टाइप करके प्रेस एंटर। ओके, तो ये मेरा बन गया 90 का। ओके, यस बॉस, समझ गए? ठीक है। yes, और yes. इसमें ओके, इसमें कस्टमाइजेशन में जिसने भी, जब मैंने एब्सोल्यूट पे इसको स्विच करा तो हो सकता है किसी ने करा हो, तो वो इसमें जाएंगे और फिर से रिलेटिव पे स्विच कर लेंगे, बिकॉज जब हम ऑटोकैड का एग्जाम या कुछ भी सॉल्व करेंगे तो उसमें जो हमें यूजफुल होगा
वो हमारा रिलेटिव होगा, जो कि हमारा डिफॉल्ट सेटिंग है ऑटोकैड की। ओके, तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट पे इसको फिर से स्विच कर लेना है। Next we come on multi-line. So multi-line are the objects having maximum of 16 parallel lines and minimum of 2 parallel lines. So I'll explain that what I mean here. This is ortho mode, सबको पता है क्या होता है। मैं ortho mode on कर रही हूँ, मुझे सीधी लाइन चाहिए, this line. Then I will make a line again, okay, and I will make a line again parallel. Just a second. ओके तो यहाँ पे ये थोड़ा गैप इनमें वेरिएबल हो गया, बट ये सेम होता है, ठीक है, ये सेम गैप है, ज्यूम कर लो। तो इसमें क्या है कि ये जो लाइन है ये अभी मैंने 3 लाइन से बनाई है, बट जब मैं मल्टी लाइन से ये लाइन बनाऊंगी तो मुझे 3 लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही मल्टी लाइन बनाऊंगी और उसमें ये 3 आएंगी, और मैक्सिमम ऑफ 16 तक आ सकती हैं और मिनिमम 2 तक। वो हमें सेट करना होता है, जो अभी तुम्हें यूज का नहीं है तो सेट करना नहीं बताऊंगी, बट मल्टी लाइन का यूज बता दूंगी, ठीक है। मल्टी लाइन का एक्सेस कैसे करना है, यहाँ पे जो तुम्हारा रिबन है, जहाँ पे तुम्हें होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामीटर ये सब लिखा दिख रहा होगा, इसके जस्ट ऊपर एक और रिबन है, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन पे। यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्रॉ का। हो सकता है कुछ लोग के सिस्टम में ये ड्रॉ का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो उन्हें क्या करना है, जस्ट टाइप मेन्यू बार इन योर कमांड बॉक्स, टाइप मेन्यू बार इन योर कमांड बॉक्स, press enter, then you can show here in my screen it is 1, in your screen it is 0, so just type here 1 and press enter, so you got this ribbon here. Okay, go to the draw option, go to the multi-line on the fifth number multi-line. Okay, first way is that to access multi-line, and the second way, just type ml in your dynamic input box and press enter. So we select multi-line. See, this is our multi-line. Okay, we can draw here, here, here. Okay, इसमें अभी नीचे कमांड बॉक्स में दिख रहा होगा आपको जस्टिफिकेशन, स्केल एंड स्टाइल। जस्टिफिकेशन यहाँ पे देखो सेट है टॉप पे। ओके, इसका क्या मतलब है अभी बताती हूँ। स्केल टॉप सेट है 20 पे और स्टाइल सेट है स्टैंडर्ड पे। तो इसमें क्या होता है, जस्टिफिकेशन टॉप पे सेट है, मतलब जब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगी तो जब मुझे इस लाइन को या तो मूव करना है या कुछ भी करना है, मतलब इस लाइन से, तो इसमें मुझे जो ये पिक पॉइंट देगा, मतलब जहां से मैं इस लाइन को पिक कर सकती हूँ, वो है टॉप, यानी जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन हमारा सेट था टॉप पे, तो इसका टॉप है। वी कैन चेंज जस्टिफिकेशन टू 0 और बॉटम। जब वो बॉटम होगा तो मुझे ये वाला पिक पॉइंट मेथड मिलेगा, और जब वो 0 होगा तो मुझे सेंटर पे एक पिक पॉइंट मिलेगा। ओके, सेकेंड इज स्केल। स्केल इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। ओके, स्केल हमने देखा था अभी, स्केल था हमारा 20, तो वी कैन measure here that the distance of these two lines is 20. So scale is the distance between these two parallel lines in the multi-line. Okay, next is our style. Style is standard. Standard means ki only 2 parallel lines is there in this multi-line, and the style of this multi-line is standard. जब multi-line का style standard होगा तब उसके अंदर 2 multi-line होंगी। हम easily इस style change करके उस multi-line के अंदर number of parallel lines increase कर सकते हैं up to 6. Okay, if you guys have any problem in multi-line, then please ask. Okay, no one have any doubt? Next is our multi-line edit. Multi-line edit, just I draw some multi-lines here. आपको पता है कि मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने जस्ट अभी वह बताया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ मल्टी लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे मल्टी लाइन एडिट का मतलब है कि जैसे मैंने ये 2 मल्टी लाइन एडिट बनाई, तो इसमें क्रॉस सेक्शन को मैं एडिट कर सकती हूँ। देयर इज क्लोज्ड, देयर इज नो क्रॉस सेक्शन। ओके, यहाँ पे ये क्लोज है, बट मुझे यहाँ पे ये ओपन चाहिए या कुछ भी, तो उसके लिए हम मल्टी लाइन एडिट में जाएंगे और उसे एक्सेस करने के लिए हमें टाइप करना है ml edit. Okay, then press enter. Here so many options. Let's suppose I want to open cross. I want open cross in this in this cross section. So just click on open cross.
सेलेक्ट फर्स्ट मल्टी लाइन, ये हमसे पूछ रहा है कि तुम्हें क्या करना है, सेलेक्ट सेकेंड मल्टी लाइन, देन सेलेक्ट सेकेंड मल्टी लाइन, ओके, देन प्रेस एंटर, बस हो गया। इसमें हमें ओपन चाहिए था, ओपन हो गया। वैसे ही जब हम, ये तो वो बात रही जब हमारे पास चार तरफ, मतलब चार, एक 4 रो वाला इंटरसेक्शन था। जब हमारे पास 3 वाला इंटरसेक्शन है उसमें भी हम कर सकते हैं। जस्ट टाइप ML edit, प्रेस एंटर, here is ये close T, open T and merged T. So let's suppose I want close T, नहीं close T तो ये पहले से है, open T, ठीक है। तो just फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करी, ये हमसे पूछ रहा है, इट्स आस्किंग अस फर्स्ट लाइन, फर्स्ट मल्टी लाइन, देन क्लिक ऑन इट, देन सेलेक्ट सेकेंड मल्टी लाइन, क्लिक ऑन इट, जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट मल्टी लाइन सेलेक्ट करी, देन सेकेंड मल्टी लाइन सेलेक्ट करी और इसने ओपन टी क्रॉस सेक्शन बना दिया, ठीक है। सबको दिख रहा है, सबको समझ आया कि मल्टी लाइन एडिट का यूज कैसे करा मैंने, ओके। अब किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ लो। अजय, सॉरी अजाज आलम, हाँ हम कर सकते हैं। मल्टी लाइन के बीच की डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि उसके बीच में स्केल, जस्टिफिकेशन, स्केल और स्टाइल का ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग स्केल में जाके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो अभी आपका यूज नहीं है इसलिए मैंने बताया नहीं, ओके। उसके अलावा किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, सारी चैट तो नहीं पढ़ सकती। आगे बढ़े। वो सी फर्स्ट एंड सेकंड लाइन सेलेक्ट करने से ये क्रॉस सेक्शन इरेज हो जाएगा क्या? कौन सा, एक सेकेंड, जो आपने हाँ बोलो। टी वाला बताया था ना, ये ओपन करके, तो इसमें आपने फर्स्ट सेलेक्ट किया और सेकंड सेलेक्ट किया। ओके इसमें क्या होता है, इसमें हमें ना फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करनी होती है और सेकंड लाइन। तो उसमें मैंने जब पहले जो वो नहीं हुआ था जिसकी तुम बात करो, तो मैंने फर्स्ट लाइन ये वाली सेलेक्ट कर ली थी और सेकंड ये, तो उसने एक्सेप्ट नहीं करा। तो फिर मैंने क्या करा कि मैंने फर्स्ट इसको सेलेक्ट करा और सेकंड इसको, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ओके यही पूछ रहे हो ना, ओके। यस। और किसी को कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। इससे पहले वाला भी अगर किस, हाँ चैट बॉक्स में भी लिख, आपने जो पहले लाइन सेलेक्ट की थी जिसमें नहीं हुआ था तो उसमें वो हुआ क्यों नहीं था? हाँ वही मैंने अभी बताया ना कि उसमें ऐसा ऑटोकैड में हो जाता है, खैर कभी कभी, क्योंकि हमें उसने मुझसे कहा कि सेलेक्ट फर्स्ट मल्टी लाइन। अब मुझे तो नहीं पता ना कि वो कौन सी मल्टी लाइन की बात कर रहा है, तो मैंने ये वाली मल्टी लाइन फर्स्ट नंबर पे सेलेक्ट कर ली थी, ये वाली। देन उसने बोला सेकंड, तो मैंने ये वाली सेलेक्ट कर ली, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं करा। तो उसके बाद मैंने जस्ट उसको कुछ नहीं करा, इंटरचेंज कर दिया, ये वाली मैंने सेकंड पे, फर्स्ट सेकंड पे कर दी और ये वाली मैंने फर्स्ट पे कर दी, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर कभी ऐसा होता है तो ऐसे कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और अभी 2-3 शॉर्टकट वो अभी वैसे बता दिए हैं, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जब भी तुम्हारे पास कोई भी कमांड होती है, लेट्स सपोज मैंने लाइन कमांड में ले रखी है, इस टाइम मैं लाइन कमांड से काम कर रही हूँ और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, लेकिन ये अब मैं देख रही हूँ ना, मैं आगे बढ़ रही हूँ लेकिन ये पीछे वाले कॉर्नर को साथ लेके आगे आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे एंटर करना होगा तब ये पीछे वाला कॉर्नर छोड़ देगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे फिर से लाइन कमांड पे काम करना है, लेकिन मैं अब इतनी मेहनत नहीं करूंगी ना कि मैं वापस लाइन कमांड पे जाऊं या फिर मैं टाइप करूं L और फिर एंटर करूं। इतनी मेहनत नहीं करनी है, जस्ट प्रेस स्पेस, स्पेस बार होती है कीबोर्ड में, बस उसको प्रेस करना है तो तुम्हारी प्रीवियस कमांड पे वापस आ जाओगे, ओके। और फिर से तुम अपना लाइन बना सकते हो। और जब भी तुम एक किसी भी अपने कमांड पे हो, मैं अभी लाइन कमांड पे हूँ, तुम्हें दिख रहा है, तो अभी मुझे ये कमांड यहाँ से, मुझे किसी दूसरी कमांड पे नहीं जाना है, बस मुझे अपनी कमांड को यहीं पे लीव कर देना है। तो उसके लिए मुझे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कीबोर्ड पे एस्केप होता है, उसको क्लिक करना है, तो कमांड रिमूव हो जाएगी और कोई नई कमांड भी नहीं आएगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम काम कर रहे हो और वो बीच में स्टक हो जाता है, कोई कमांड आती भी नहीं है, कोई कमांड तुम छोड़, मतलब ले भी नहीं सकते, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, एस्केप प्रेस करना है 2-3 बार, तुम 3-4 बार कर दो तो उसमें फिर वो एक तरीके से रिफ्रेश हो जाती है स्क्रीन, ठीक है। ओके मल्टी लाइन में हो गया।
उसके बाद स्क्रीन का भी बता देती हूँ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। माउस में जब तुम लेफ्ट अपना लेफ्ट वाला प्रेस करते हो, लेफ्ट बटन प्रेस करते हो, तो उसमें कोई भी जैसे कमांड ली, अब हमें ये कमांड अप्लाई करनी है तो हम लेफ्ट वाला बटन दबाएंगे और ये वाली कमांड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसमें अगर हमें ये स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करना है तो बस रोल बटन है, हमें उसे रोल करना है जूम इन जूम आउट करने के लिए। और जब हमें इस स्क्रीन को मूव करना है तो हमें जो रोल बटन है उसको प्रेस करके रखना है एंड देन वी कैन मूव अवर स्क्रीन। ओके, यू कैन सी मैं कर पा रही हूँ। अगर तुम लोग कर रहे हो ऑटोकैड पे तुम करके देख सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज पॉलीलाइन। हेयर जस्ट लाइन के साइड में है पॉलीलाइन, तो जस्ट इसमें भी पॉलीलाइन में या तो तुम यहाँ से सेलेक्ट कर लो पॉलीलाइन, तो तुम पॉलीलाइन कमांड को एक्सेस कर पाओगे, या फिर अगर यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो जस्ट टाइप PL और तुम पॉलीलाइन सेलेक्ट कर लोगे। ओके, पॉलीलाइन से लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पॉलीलाइन से एक रेक्टेंगल बना रही हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल नहीं, सॉरी, पॉलीगन बन गया, कोई नहीं। और फिर मैं लाइन से एक सेम पॉलीगन बना रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, पॉलीलाइन और लाइन में डिफरेंस क्या होता है वो बताती हूँ। लाइन से मैंने ये वाला बनाया है, पॉलीलाइन से ये, तो जब मैं इसे सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो मुझे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये और ये, इनकी चारों लाइन को इंडिविजुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मुझे ऐसे वो जो ग्रीन वाला वो रहता है वो सेलेक्ट ऑप्शन, उसको लेके फिर उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पर जब अगर मैं कोई भी अपना ऑब्जेक्ट जो कि पॉलीलाइन से बना हुआ है उसे सेलेक्ट करूंगी तो मुझे जस्ट सिंपल एक क्लिक करना है और मैं उसे पूरा सेलेक्ट कर पाऊंगी। इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट तुम लाइन से बनाते हो वो ज्वाइन नहीं होता है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होता है, लेकिन जो तुम पॉलीलाइन से बनाते हो वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होता है। फर्स्ट एडवांटेज पॉलीलाइन का यही होता है कि वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाता है। सेकेंड ये भी होता है कि पॉलीलाइन को हम एडिट कर सकते हैं। ओके, तो पॉलीलाइन एडिट, मूव टू पॉलीलाइन एडिट। आई ड्रॉ पॉलीलाइन हेयर, दिस। ओके, अभी पॉलीलाइन एडिट में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जस्ट क्लिक ऑन दिस पॉलीलाइन एंड you can see when you put your cursor on the between of this segment of this line, then there is option stretch, add vertex and convert to arc. Stretch means when you click stretch, you can stretch this bar, this edge up or down wherever you want. Okay, let's suppose down and click here, that's it. Then if you want to add a vertex सबको पता है vertex क्या होता है। तो जब तुम्हें यहाँ पे एक वर्टेक्स ऐड करना तो जस्ट क्लिक ऑन ऐड वर्टेक्स, तो यहाँ पे एक वर्टेक्स ऐड हो जाएगा और फिर अपने हिसाब से जहाँ पे भी तुम उस वर्टेक्स को लोकेट करना चाहते हो वहाँ पे जाके लेफ्ट क्लिक ऑफ योर माउस, जस्ट क्लिक। ओके, उसके अलावा मेरा ये वाला सेगमेंट है, अब मुझे ये सेगमेंट आर्क चाहिए। आर्क सबको पता है आर्क क्या होता है, तो ये सेगमेंट मुझे आर्क चाहिए, तो कन्वर्ट टू आर्क, जस्ट क्लिक ऑन कन्वर्ट टू आर्क। सो सी, तो जिस भी साइज के तुम्हें आर्क चाहिए वो यहाँ पे तुम ऐसे करके, और उस चीज को तुम यहाँ पे लिख भी सकते हो कि तुम्हें स्पेसिफाई मिड पॉइंट ऑफ आर्क सेगमेंट, लेकिन नॉर्मली इसका यूज होगा नहीं इतना, तो तुम बस अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी लोकेशन सेट करके यहाँ पे उसको आर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, देन दिस सेकेंड इज व्हेन वी पुट अवर कर्सर ऑन एनी वर्टेक्स। अभी हमने कहाँ रखा था, लाइन सेगमेंट के बीच में, तो उसने एड वर्टेक्स का ऑप्शन दे दिया। बट व्हेन वी पुट अवर कर्सर ऑन एनी वर्टेक्स देन इट गिव अस रिमूव वर्टेक्स ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे रिमूव वर्टेक्स कर दूंगी तो यहाँ से ये वर्टेक्स रिमूव हो जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, सी। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पे हमें वर्टेक्स को स्ट्रेच करना है तो हम, जैसे हमने लाइन सेगमेंट को स्ट्रेच करा था, तो हम वहाँ पे वर्टेक्स को भी स्ट्रेच कर सकते हैं, सी ऐसे। अब जहाँ पे तुम्हें चाहिए वहाँ पे लोकेशन सेट करो और जस्ट क्लिक योर लेफ्ट बटन ऑफ योर माउस। ओके, इसके अलावा पॉलीलाइन की विड्थ चेंज कर सकते हो। अभी विवेक ने तुम्हें बताया कि जब लाइन में तुम्हें विड्थ चेंज करनी होती है तो तुम्हें यहाँ बाई लेयर में जाना पड़ता है और उसका वेट चेंज करना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें तुम्हें वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, इसमें जस्ट यू हैव टू गो इन द मॉडिफायर। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, आई एम ऑन मॉडिफायर, क्लिक ऑन दिस मॉडिफायर। The fourth option is our polyline edit polyline. Click on this edit polyline. Okay,
देन सेलेक्ट पॉलीलाइन। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट सारे तुम्हारे काम के नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, विड्थ चेंज करनी है हमारी पॉलीलाइन की, तो जस्ट गो ऑन टू द विड्थ एंड क्लिक। ओके, इट आस्क्स स्पेसिफाई न्यू विड्थ फॉर ऑल सेगमेंट्स। यहाँ पे हमें सारे सेगमेंट्स की विड्थ इंक्रीज करेगा और ये हमसे पूछ रहा है कि हमें कितनी विड्थ चाहिए। लेट सपोज मुझे 5 चाहिए, तो जस्ट 5 टाइप करा और एंटर कर दिया। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि ये पहले वाली लाइन से ब्रॉड हो गई है, यानी इसकी विड्थ बढ़ गई है, 5 हो गई है। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक पॉलीलाइन में फिर से ड्रॉ करूंगी यहाँ पे। ठीक है, अभी फिर से मैं मॉडिफाई में जा रही हूँ, एडिट पॉलीलाइन, क्लिक लेफ्ट बटन ऑफ योर माउस, क्लिक, देन कम ऑन दिस पॉलीलाइन, सेलेक्ट द पॉलीलाइन। अब हमें क्या करना है, इसमें वी वांट टू इंक्रीज द विड्थ ओनली अ लाइन सेगमेंट ऑफ दिस पॉलीलाइन। मतलब हमें पूरी लाइन की विड्थ नहीं बढ़ानी है, हमें सिर्फ एक लाइन सेगमेंट की विड्थ बढ़ानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, देयर इज अ ऑप्शन एडिट वर्टेक्स, जस्ट क्लिक ऑन दिस एडिट वर्टेक्स। अब हमें कौन से सेगमेंट की, यू कैन सी दैट ये दिस इज क्रॉस, क्रॉस मीन्स ये जो भी हमारा लाइन सेगमेंट है वो इस वाले वर्टेक्स से स्टार्ट होगा। बट लेट सपोज मुझे इस वाले सेगमेंट की नहीं बढ़ानी विड्थ, मैं चाहती हूँ इस वाले सेगमेंट की विड्थ बढ़ानी, तो जस्ट क्लिक नेक्स्ट, देन क्लिक नेक्स्ट, तो ये यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ से यहाँ तक की तो ये यहाँ पे ठीक है, ओके। उसके बाद जस्ट गो ऑन द विड्थ एंड क्लिक, ओके। स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ ऑफ नेक्स्ट सेगमेंट। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर का चाहिए, तो मैं 5 टाइप करूंगी एंड एंटर कर दूंगी। तो यू कैन सी दैट 5 विड्थ जो है वो लाइन की, वो सिर्फ क्रॉस वाले सेक्शन पे है। तो इसमें हमसे फिर से वो आस्क कर रहा है, इट आस्क दैट स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ फॉर नेक्स्ट सेगमेंट। मतलब कि इस वाले पॉइंट पे तो जहाँ पे क्रॉस है वहां तो 5 हो गई, बट इस सेगमेंट के जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वहां पे वो अभी भी 0 है, मतलब 0 जो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो है। तो अगर तुम्हें यहाँ पे कोई मतलब अगर तुम्हें यहाँ पे एक कांस्टेंट विड्थ चाहिए इस सेगमेंट की, तो तुम यहाँ पे भी 5 एंटर करो जस्ट और क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक यूनिफॉर्म सी विड्थ हो गई सेगमेंट की। बट अगर तुम्हें ऐसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विड्थ भी चाहिए तो वो तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ से तुमने 10 की कर ली और यहाँ पे 5 की, तो वो डिक्रीजिंग हो गई। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम उस हिसाब से कर सकते हो। ओके, पॉलीलाइन एडिट इतना ही था। लाइन हो गया, मल्टी लाइन हो गया, पॉलीलाइन एडिट हो गया। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। Hello, am I audible? Hello? Oh, I thought I'm not audible. किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड जो मैंने बताया, या फिर इससे पहले जो नंदिनी और विवेक ने बताया उससे रिलेटेड, या फिर किसी भी चीज से जो अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो बताओ। No one has any doubt? बॉस पॉलीलाइन में विड्थ एडिट करना वापस बताना। ओके ओके रौनक, ओके। सो गो टू योर पॉलीलाइन कमांड, प्रेस योर लेफ्ट बटन ऑफ योर माउस, ड्रॉ अ पॉलीलाइन रैंडमली, मतलब मैं रैंडम कर रही हूँ, तुम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना। फिर उसमें क्या करना है तुम्हें, यहाँ मॉडिफाई है, जहाँ पे तुम्हारा ये होम टैब है उसी में नीचे सेकंड वाले ब्लॉक में नीचे मॉडिफाई है, मॉडिफाई में जाना है। 4th वाला पॉइंट है हमारा पॉलीलाइन एडिट का, उस पर क्लिक करना है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे बाहर आ जाएंगे, हमसे ये कह रहा है सेलेक्ट पॉलीलाइन। सेलेक्ट, हमें पॉलीलाइन अपनी सेलेक्ट कर देनी है, क्लिक, ओके। उसके बाद 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम पूरी जो हमारी लाइन है उसकी विड्थ इंक्रीज करना चाहते हैं, या फिर एक सेगमेंट की। तो पहले हम पूरी लाइन की विड्थ इंक्रीज करने के बारे में देखेंगे। उसमें हम जाएंगे विड्थ पे, ओके। यू हैव टू गो टू द विड्थ एंड देन क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ योर माउस, क्लिक, ओके। स्पेसिफाई न्यू विड्थ फॉर ऑल सेगमेंट्स, ओके। स्पेसिफाई करनी है तुम्हें। इसमें क्या है, इसमें तुम अपने कर्सर से भी स्पेसिफाई कर सकते हो, बट उतना ज़्यादा एक्यूरेट तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए आई सजेस्टेड कि तुम वहाँ पे टाइप करो। तुम्हें लेट सपोज ये 5 विड्थ चाहिए इस पूरे लाइन सेगमेंट के, तो जस्ट टाइप 5 एंड प्रेस एंटर। तो तुम देखोगे यहाँ पे पूरी लाइन की विड्थ जो है वो 5 हो गई, ओके।
एंड द नेक्स्ट इज जब हमें ओनली एक सेगमेंट की विड्थ बढ़ानी होती है, उसमें क्या करना है, फिर से मॉडिफायर में जाना है, फिर से तुम्हें एडिट पॉलीलाइन में जाना है, देन सेलेक्ट योर पॉलीलाइन, गो टू द एडिट वर्टेक्स। पिछली बार हम गए थे विड्थ पे जब पूरे की विड्थ करनी थी, इस बार हमें सेगमेंट की विड्थ चाहिए तो एडिट वर्टेक्स पे जाएंगे। इसमें ये शो कर रहा है फर्स्ट वर्टेक्स, तो if I want to increase the width of this segment, first segment of this line, then ये okay है, बट मुझे इस सेगमेंट की नहीं करनी। लेट्स सपोज मुझे इस वर्टिकल सेगमेंट की विड्थ इंक्रीज करनी है, तो मुझे ये क्रॉस इस वाले वर्टेक्स पे लाना पड़ेगा। उसके लिए जस्ट क्लिक नेक्स्ट, हेयर इज नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब ये यहाँ पे आ जाएगा, यू हैव टू गो टू द विड्थ, second last is width, click on this, it asking us that specify starting width for next segment, हमें starting width बतानी है। starting width मतलब कि ये जो हमारा segment है वो इस क्रॉस से स्टार्ट होएगा, और इस क्रॉस से स्टार्ट जो हमारा segment है उसकी starting width क्या है। तो लेट्स सपोज मुझे 5 ही चाहिए, तो मैं 5 एंटर करूंगी, मतलब टाइप करूंगी एंड देन प्रेस एंटर। ओके, you can see width of this segment is here is 5, but here is default width. Okay, then it asks us specify ending width for next segment, मतलब कि इस segment में जहाँ से हमने start करा वहाँ पे तो हमने 5 दे दी, लेकिन जहाँ पे ये segment end हो रहा है वहाँ पे भी हमें कोई width देनी है। अब वो तुम अपनी requirement के according, कि अगर तुम्हें एक कांस्टेंट विड्थ चाहिए, लेट्स सपोज 5 से 5 चाहिए, तो वहां भी 5 यहाँ भी 5, बट लेट्स सपोज तुम्हें अगर इंक्रीजिंग चाहिए तो वहां पे तुमने 5 दिया था, यहाँ पे तुम डिक्रीजिंग चाहिए, वहां 5 दिया था, तो यहाँ पे तुम 2 कर दोगे तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, बट मुझे यहाँ पे सेम ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 करूंगी टाइप और जस्ट एंटर। ओके, तो तुम देखोगे यहाँ पे सेगमेंट की जो विड्थ है वो 5 हो जाएगी। यहाँ पे पूरी लाइन की हुई थी, यहाँ पे सिर्फ एक सेगमेंट की हुई है। ओके, किसने पूछा था? रौनक समझ आया? You can put your mic on, Ronak. Hey, hello.